اولیاء کے سامعین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاک کربل کتاب سے یوم شہادت کربل کے شہیدوں کا میدان کربلا میں صبح کی اذان کے لیے شہزادہ علی اکبر کی صدائے توحید اور رسالت بلند ہوئی۔ آپ کے جانثار جماعت نے امام برحق کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ لوگوں نے جس خلوص اور عقیدت سے اس وقت تک میرا ساتھ دیا ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ میں پھر آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ مجھے اللہ کے سپرد چھوڑ کر چلے جاؤ، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے آپ لوگ موت کے منہ میں چلے جائیں، آپ کی بیویاں بیوہ ہو جائے، آپ کے بچے یتیم ہو جائے۔ مگر اس آخری وقت بھی، جس وقت لشکر یزید جنگ کے لیے للکار رہا تھا اور ہر ایک کو موت نظر آ رہی تھی، 3 دن سے بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، تمام نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ حسین، ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی آپ کے نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت کے امیدوار ہیں، اور ہم بھی ایک فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے، اور صرف آپ کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اسلام کی عزت، دین کی آبرو اور حق و ہدایت کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے ہمیں بھی اپنی قربانی پیش کرنے کی اجازت دیجیے۔ ایک انسان کے لیے خوف و ہراس، بھوک اور پیاس، بال بچوں کی محبت اور اپنی جان کی خاطر اس دنیا میں انتہائی مصیبتیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن پاک نے بھی انہی چیزوں کو رائے حق صداقت کے لیے آزمائش قرار دیا، مگر اس مکمل انسان نہیں بلکہ انسانیت کے پیکر مظلوم کربلا کے سامنے یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے موجود تھی۔ لیکن اگر وہ بھی راہ حق سے رودگرانی کر کے یا کسی مصلحت وقت کی تعویل پر عمل کرتے ہوئے یا تقیہ کرتے ہوئے ایک فاسق و فاجر اور ایک شریعت کے باغی کی اطاعت کر لیتے اور ایک شخصی حکمراں کے آگے سر جھکا لیتے، تو وہ ان تمام مصائب سے نجات پا کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتے۔ مگر نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یزید کی حکومت غیر اسلامی تھی۔ یزید خود اسلامی سرحدوں کو توڑتا تھا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال کے لیے ایک غیر اسلامی حکومت کو تسلیم کر لینا، ایک اسلام کے باغی کے آگے سر جھکا دینا خاندان نبوت کی توہین تھی، شیر خدا کی توہین تھی، فاطمہ کے دودھ کی توہین تھی۔ اور میں حضرت امام حسین علیہ السلام پر اعتراض کرنے والوں سے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میدان کربل میں جو کچھ ہوا یہ ہونا تھا اور ضرور ہونا تھا، اس لیے کہ اس کی اطلاع زبان مصطفیٰ علیہ السلام سے نکل چکی تھی، اور یہی نوشہ تقدیر تھا جو نواسہ رسول کے لیے روز اول سے لکھا جا چکا تھا۔ ورنہ جس خدا نے حضرت ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری نہ چلنے دی، اور جس خدا نے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام پر آتش نمرود کو گلزار بنا دیا، اور جس خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور جس خدا نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دی، اور جس خدا نے حضرت اسماعیل کی پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑنے پر آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، میدان کربل میں وہی خدا تھا۔ اور آج اس میدان میں پیاس سے ہانپنے والے، بوڑھے تڑپنے والے، جوان اور بلکنے والے بچے اسی خلیل اللہ کی نسل پاک تھی، اور شدت پیاس سے ایڑیاں رگڑنے والا معصوم علی اصغر اسماعیل ہی کی اولاد تھے، اور نیزے پر قرآن پڑھنے والا حسین بھی ملت ابراہیمی کا امام تھا، اور یہ بھی اگر چاہتا تو آسمان سے فرشتوں کی فوج آ سکتی تھی۔ تسنیم و کوثر کی نہر زمین کربلا پر پانی کے پرنالے بہہ سکتی تھی، خاکی کربلا کے ذرے ذرے سے پانی کے چشمے پھوٹ سکتے تھے، اور لشکر یزید کو نیزے کی ایک جنبش سے فنا کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ فرمان مصطفیٰ جھوٹا نہ ہو جائے اور نوشہ تقدیر غلط نہ ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب میدان کربل میں جعفر نے عرض کی کہ آقا، اگر حکم ہو تو لشکر کو یزید کے ایک دم میں تباہ کر دوں، تو صابر امام نے جواب دیا کہ اے جعفر، تمہاری اس ہمدردی اور ہمغمزگاری کا شکریہ، مگر تمہارے ہاتھوں اپنے نانا کی امت نہیں مروا سکتا۔ شیر خدا کا شیر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میدان کربلا میں آیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آواز آئی، حسین بیچ جا، میں تقدیر ہوں۔ حسین نے کہا، آجا، میں شبیر ہوں۔ پھر آواز آئی، حسین مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ حسین نے فرمایا، مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ پھر آواز آئی، حسین میرا نام قضا ہے۔ حسین نے کہا، میرے باپ کا نام مرتضیٰ ہے۔ اور پھر عقل بولی، حسین یزید کی بیعت کرنے سے شان و شوکت ملے گی، تخت و تاج ملے گا، دنیا کے خزانے ملیں گے،
आराम भी आएगा और राहत भी मिलेगी, दौलत भी, मदीने की हुकूमत भी मिलेगी। मगर इश्क ने पुकारा हुसैन, ये तो ठीक है, पर तूने जो ज़रा आज अगर सब्र दिखाया, कौसर भी मिलेगा, जन्नत भी मिलेगी। अकल ने फिर कहा, हुसैन देखना कहीं घर का निज़ाम न बिगड़े। इश्क ने फिर आवाज़ दी, हुसैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम न बिगड़े। अकल फिर बोली, हुसैन अकबर की लाश पर घोड़े दौड़ेंगे, अस्कर के हलक में तीर पेवस्त होगा, अब्बास के बाजू कलम होंगे, आबिद के बाहों में बेड़ियाँ पहनाए जाएंगी, बीबी ज़ैनब के ख़ैमे जलाएंगे, तुम्हारा सर निधे पर चढ़ाया जाएगा, कासिम के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, अब भी वक्त है बच्चा। इश्क फिर पुकारा, हुसैन ये सब कुछ होगा मगर कब? दोष मुस्तफ़ा है, नूर निगाह मुर्तज़ा है, लख्त जिगर ज़हरा है, और तूने पाक फातिमा का दूध पिया है। इसलिए हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चढ़ जाए कट कर सर तेरा नेज़े की नोक पर, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की इताअत न कर हो। लश्कर यजीद से आवाज़ आई, हुसैन देर क्यों कर रहे हो? क्या यजीद की बैअत के मुताल्लिक़ सोच रहे हो? उमर बिन साद की इस बदज़ुबानी से हैदरी खून जोश में आ गया, घोड़े को एड़ लगाई और तन्हा लश्कर आद के सामने खड़े हो गए और एक ईमान अफरोज खुतबा इरशाद फरमाया, ऐ बातिल परस्तों और दीन के दुश्मनों, सुनो और गौर से सुनो। ये जो कुछ तुम कह रहे हो वो कौन है और जिसको कौन है और जिसके खून के प्यासे हो उसकी शान क्या है? मेरा हसब नसब को याद करो, मैं नवासा रसूल हूँ जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। मैं उस बाप का बेटा हूँ जो तुम्हारा खलीफा और इमाम था। मैं इस माँ का फर्जंद हूँ जिसकी फरिश्तों को शर्म आती थी। मेरा खानदान नबूवत है, मेरा घराना नूरानी और पाक है। आयत ततीर हमारी शान में नाज़िल हुई। मैं इमामुल अंबिया के दोष पर सवार होने वाला हुसैन हूँ। मैं महबूब खुदा की जुल्फों से खेलने वाला हुसैन हूँ। मेरा कोई कसूर है तो बताओ, मेरा कोई जुर्म है तो साबित करो, मेरा कोई गुनाह है तो आवाज़ दो। मैं खुद नहीं आया, तुम्हारे बुलाने पर आया हूँ कूफियों। तुम्हारे सैकड़ों खत मेरे पास मौजूद है और फिर मैंने एक एक का नाम लेकर मुखातिब किया और फरमाया कि दुनिया के लालच में आकर और यजीद के गैर इस्लामी दरबार से इनाम और इकराम पाने की तमाम इतरत पैगंबर को हलाक करने का इरादा अब भी छोड़ दो और अपनी आकबत को संवारो। मेरा खुदा तुम्हें माफ़ करे। हाँ, तुम्हारी नज़र में अगर मेरा कसूर है तो वो ये कि मैं यजीद की बैअत नहीं करता और एक फासिक और फाजिर के आगे सर नहीं झुकाता, तो सुन लो, अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, भूखा और प्यास बर्दाश्त कर लूँगा, अकबर और असगर को हंस कर इशार करूँगा और ख़ुद भी नींदों पर चढ़ जाऊँगा, मगर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लाल से तौक़ुन न रखो कि वो भूख और प्यास, खौफ और हरास और कत्ल औलाद के डर से यजीद की बैत करे। मेरे आका हुसैन पर एतराज़ करने वालों, जाननुमी कुत्तों, जानते हो कि मैदान करबल मुहर्रम की 10 तारीख को ये कौन खड़ा है और कहाँ खड़ा है, कौन किसके सामने खड़ा है और किस लिए खड़ा है? अगर जानते हो तो समझो, अगर नहीं जानते तो सुनो और गौर से सुनो। ज़ाहिरी कानों से नहीं, दिल के कानों से सुनो। ये रकाब दोष मुस्तफ़ा है, ये राहत जान मुस्तफ़ा है, ये राहत जान मुर्तज़ा है और ये लख्त जिगर फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है। ये महबूब खुदा का प्यारा हुसैन है, ये अली के दिल का सहारा हुसैन है, ये फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आँखों का तारा हुसैन है। और ये मिस्र और शाम के शाही महलों में नहीं और रोम और ईरान के सुनहरी तख्त पर नहीं, बल्कि इराक के बयाबा में खड़ा है, कूफा के रेगिस्तान में खड़ा है और करबल के मैदान में खड़ा है। और उनके सामने खड़ा है जो उसके नाना का कलमा पढ़ते हैं, जो अज़ान में उसके नाना का नाम लेने वाले हैं, और जो अपनी नमाज कबूल कराने के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मदिन कहने वाले हैं। और ये इराक में खड़ा है जिसका बाप दारुल खिलाफत जिसके बाप का दारुल खिलाफत था, और उस कूफे में खड़ा है जिसकी जामा का इमाम इसका बाप था। और उनके सामने खड़ा है जहाँ नमरूद ने हज़रत खलीलुल्लाह के लिए कच्चा तैयार किया, और जहाँ हारूत और मारूत को अंधेरे कुएं में लटकाया गया, जहाँ से तूफान नूह के दरिया उबले। और ये आज अपने बच्चों के खून से दीनों ईमान की क्षमा जलाने के लिए खड़ा है, बातिल के मुकाबले में हक का अलम लहराने के लिए खड़ा है, नेज़े पर चढ़कर कुरान सुनाने के लिए खड़ा है। लश्कर आल में एक सुकूत तारी था, हर तरफ खामोशी छा गई, किसी में जवाब देने की हिम्मत न रही, इसलिए कि इमाम आली मकाम की इस ईमान अफरोज तकरीर ने उनको लाजवाब कर दिया था और हकीकत अफरोज वास ने उनकी ज़बानें बंद कर दी। वो हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे।
मगर नवासा रसूल की इस तासीर तकरीर ने हुर की आंखों से गफलत के तमाम पर्दे उठा लिए। उसने मोहब्बत भरी नज़रों से इमाम हुसैन की तरफ देखा। हया आ गई और सर झुका लिया। फिर निगाह उठाई, शर्म आ गई, गर्दन झुका ली। तीसरी बार देखा तो शिमर ने पूछा, हुर हुसैन की तरफ बार बार क्यों देखते हो? फरमाया, सालिमो, मुझे हुसैन की पेशानी से मोहम्मद का नूर नजर आ रहा है। फिर घोड़े को दौड़ाकर इमाम हुसैन के कदमों में आ गिरे। नवासा रसूल ने सर उठाया। फरमाया, हुर क्यों आए हो? अर्ज की, आका, अपने मुक्तदी होने का हक अदा करने आया हूँ, अपने गुनाह की माफ़ी के लिए आया हूँ और अपने जुर्म से तौबा करने के लिए आया हूँ और आपके कदमों में जान देने के लिए आया हूँ। अर्ज की, या इमाम, कसूरवार मैं हूँ कि आपको घेर कर यहाँ लाया, गुनहगार मैं हूँ कि आपको यहाँ उतारा, मगर वल्लाह मेरे वहम व गुमान में भी न था कि इनके दिल इतने सियाह हो चुके हैं कि आपको कत्ल करने के दर पे हो जाएंगे और आले रसूल पर पानी तक बंद कर देंगे। मजलूम करबला ने हुर को गले लगाया और फरमाया, खुदा तेरी तौबा कबूल करे। और फिर हजरत हुर ने यजीदी लश्कर की तरफ मुंह किया और उम्र बिन साद को मुखातिब करके फरमाया कि लानत है तुझ पर कि तूने दुनिया के लालच के बदले अपने दीन को बर्बाद कर दिया है और यजीद से इनाम पाने की खातिर बातिल की हिमायत करके अपनी आक़िबत खराब कर रहा है और अहले बैत की दुश्मनी में अपना नाम आमाल सिहा कर रहा है। और बाद आजा, अभी वक्त है, उठ दौड़ आकर इमाम हुसैन के कदम पकड़ ले और जिस तरह मैंने किया तू भी जहन्नुम के गड़े से निकलकर जन्नत की फिजाओं में आ जा। और ए यजीद की बातिल परस्ती का साथ देने वालों बेदीनियों, जिस फातिमा के लाल को तुमने सैकड़ों कासिद और खत भेज कर इसलिए बुलाया कि हम आपकी बैत करेंगे, अब जब वो आ गया है तो उस यजीद की बैत के लिए मजबूर कर रहे हो, उसको यजीद की बैत के लिए मजबूर कर रहे हो। ये तुम्हारी बदअहदी है, ये तुम्हारी बेवफाई है, ये तुम्हारी अहदशकनी है। अभी वक्त है, अपनी आंखों से गफलत के पर्दे उठाओ, अपने वादे को पूरा करो, बातिल का साथ छोड़कर हक की हिमायत करो, खुदा तुम्हें माफ़ कर दे। हुर अभी तकरीर ही कर रहे थे कि उम्र बिन साद ने अपनी कमान उठाई, तीर चल्ले पर चढ़ाया और ये कहते हुए तेरे इमाम पाक की तरफ फेंका कि लोगों, तुम गवाह रहना कि हुसैन पर तीर पहला मैंने चलाया है। खुदा की शान बेनियादी के कुर्बान कि ये उम्र बिन साद इन हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा है, जिन्होंने जंग ओहद में सैयदुल मुरसलीमीन की हिफाजत के लिए और दीन हक़ की रखवाली के लिए पहला तीर कुफ़ार के लश्कर की तरफ फेंका। और आज उन्हीं साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा उम्र बिन साद ने नवासा रसूल को कत्ल करने के लिए और दीन हक़ की तबाही के लिए पहला तीर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ चलाता है। इसलिए तो दाना कहे गए हैं कि जन्नती बाप का जहन्नुमी बेटा। ये था मुख्तसर किस्सा जंग करबल शुरू होने का खाके करबल किताब से। अल्लाह से दुआ है कि हमसे बयान करने में जो भी गलती हुई हमें माफ़ फरमा और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।